بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈسکور اوریجنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے دوسرے چینل ایکشن اوریجنل کو جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اس سے بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ پولیس سے مقابلے میں مارا گیا، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ زندہ ہاتھ آتا تو پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ممکن ہے اسی سے تمہاری دشمنی ہو، خالد نے امید سے کہا اور ریڈیو پر موقع پر موجود پولیس والوں سے بات کرنے لگا۔ اس کے انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے بازو میں گولی کا زخم آیا تھا۔ بے شک مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور پین کلر انجیکشن بھی دے دیا گیا تھا، مگر گولی کا زخم بہرحال بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خالد مضبوط اور حوصلہ مند شخص تھا۔ ایک پولیس افسر کو جیسا سخت جان ہونا چاہیے وہ ویسا ہی تھا۔ ریڈیو پر بات کر کے اس نے اسٹیئرنگ پر موجود پولیس والے کو ہدایت دی اور یہ کار حرکت میں آ گئی۔ ٹھنڈا پانی پینے اور اے سی میں آنے کے بعد میری جان میں جان آئی تھی۔ باہر قیامت کی گرمی تھی۔ پولیس کار سڑک عبور کر کے دوسری طرف صحرا میں روانہ ہو گئی۔ یہ خالص ریت والا صحرا نہیں تھا، بلکہ اس میں پتھر، مٹی اور جا بجا خشک جھاڑیاں بھی تھیں۔ اس میں ڈرائیونگ اتنی دشوار نہیں تھی۔ ہم 20 منٹ بعد اس جگہ پہنچے جہاں پولیس کاروں نے حملہ آور کی گاڑی کو روک لیا تھا۔ ایک سرمئی رنگ کی 4 وہیل ڈرائیو تھی جو گولیوں سے چھلنی ہو رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا اسے روکنے والوں نے بے حساب گولیاں برسائی تھی۔ گاڑی دیکھتے ایک خالد پولیس والوں پر برس پڑا۔ وہ انہیں بے بھاؤ کی سنا رہا تھا۔ کار کے اندر مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے انداز اور سننے والوں کے جھکے ہوئے سروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ڈانٹ پھٹکار سن رہے تھے۔ اپنے آدمیوں سے نمٹ کر اس نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ حملہ آور کی لاش اس کی گاڑی کے دوسری طرف پڑی تھی اور تقریباً ناقابل شناخت حالت میں تھی، کیونکہ گولیوں نے اس کا اوپری نصف سر اڑا دیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے خالد کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ اسے تو اس کی ماں بھی شاید نہ پہچان پائے۔ اسے ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ یہ نکمے اور نااہل ہیں، ان کو چارج کیا جائے گا۔ میں نے کہا بھی تھا اسے زندہ پکڑنا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے اسے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے گاڑی کی حالت کی طرف اشارہ کیا جس پر گولیوں کے درجنوں سوراخ تھے۔ ایسا لگ رہا ہے انہوں نے اپنے میگزین خالی کر دیے ہیں۔ خالد کے ماتھے پر پرسوچ شکنیں آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں سے بات کی اور ان میں سے ایک کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ خالد چند منٹ بعد واپس آیا اور اس نے اسٹیئرنگ پر موجود پولیس والے سے کہا، اتر جاؤ۔ وہ اترا تو خالد نے مجھے حکم دیا، تم ڈرائیونگ کرو گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے پوچھا، لیکن خالد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں خالد کی رہنمائی میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم مرکزی اور پوش شہر کو چھوڑ کر ایک نواحی علاقے میں پہنچے۔ یہاں پرانے طرز کی چھوٹی 4 اور 5 منزلہ عمارتیں تھیں۔ علاقہ غریب غربا کا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک عمارت کے سامنے کار روکی اور مجھ سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم اکبی طرف کی خستہ حال سیڑھیوں سے اوپر آئے۔ اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی۔ عمارت کی حالت سے لگ رہا تھا یہاں نچلے درجے کے لوگ رہتے تھے جو نہایت گندے بھی تھے، کیونکہ سیڑھیوں پر ہر طرح کی گندگی موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ ہمارے شہر کے قوانین سے باہر تھی یا انتظامیہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم تیسری منزل پر آئے اور خالد نے یہاں ایک فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کی چابی اس کی چابیوں کے گچھے میں تھی۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو یقیناً برسوں سے بند پڑا تھا، کیونکہ وہاں گرد کی موٹی تہ تھی۔ دیواروں اور چھتوں پر مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، تم یہاں رہو گے؟ پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں خطرہ ہے کہ وہاں میں محفوظ نہیں رہوں گا۔ مجھے شبہ ہے کہ اندر کے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کا اشارہ میرے دشمنوں کی طرف تھا۔ یہ شبہ مجھے بھی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ پولیس والے بہرحال انسان ہوتے ہیں، انہیں خریدا جا سکتا ہے اور مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں ہچکچایا، پھر کہا، مجھے دوسری بات درست لگ رہی ہے۔ وہ جو بھی ہے بہت دولت مند اور اثر رسوخ والا لگ رہا ہے۔ دوسری طرف تم کہتے ہو کہ تم بالکل نہیں جانتے کہ دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تم جان گئے ہو میں ایک عام سا فرد ہوں، ڈاکٹر ہوں اور میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ میرا کبھی دولت مندوں سے تعلق نہیں رہا۔ میرا کوئی بزنس نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ خالد نے سر ہلایا۔ جو شخص حملہ آور کا تعاقب کرنے والی پارٹی کا انچارج تھا وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی حرکتیں مشکوک رہی ہیں۔ میں اس کی رپورٹ کروں گا۔ وہ حملہ آور کو زندہ گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے مار دیا۔ اسی کے حکم پر پولیس نے فائرنگ کی تھی۔ اگر اس پر دباؤ ڈالا جائے تو اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میرا پہلا ہدف تم کو محفوظ رکھنا ہے اور جلد از جلد یہاں سے تمہاری روانگی کے لیے کلیئرنس حاصل کرنا ہے۔
क्लियरेंस कौन देगा? मेरा बॉस, सिटी पुलिस चीफ, उसने कहा और फ्लैट का जायजा लिया। यह जगह गंदी है और यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है। मैं अब रात को आऊँगा, तब तक तुम सब्र करना, और मेरा सामान वो महफूज रहेगा। उसने मुझे तसल्ली दी और रुखसत हो गया। उसने जाते हुए मुझे हदायत दी थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखूं और उसकी आवाज़ सुने बगैर हरगिज़ न खोलूं। अगर खतरा महसूस करूं तो उसे कॉल करूं। जाते हुए उसे खुद ड्राइव करना पड़ती। राजदारी के पीछे नज़र वो किसी को साथ नहीं लाया था। उसके जाने के बाद मैंने फ्लैट का जायजा लिया। इसमें एक वॉशरूम था और इसमें पानी आ रहा था। किचन मुकम्मल तौर पर खाली था और सिवाय कराकरी के कुछ नहीं था। फ्रिज बंद पड़ा हुआ था, अलबत्ता इसमें मिनरल वाटर की पैक बोतलें थीं। मैंने उसे ऑन किया और एक बोतल निकाल कर फ्रीजर वाले हिस्से में रख दी। मैं शुरू से सफाई पसंद रहा और मुझे यहाँ मौजूद गर्द जालों से वहशत हो रही थी। मैंने सोचा और सबसे पहले सफाई का सामान तलाश किया। वो मुझे बालकोनी में मिल गया। इसके बाद मैंने कपड़े उतार कर वॉशरूम में साफ जगह लटकाए और खुद नीकर में सफाई में जुट गया। 2 घंटे में मैं खुद भूत बन गया था, मगर फ्लैट साफ और चमकने लगा था। यहाँ बेडरूम में एसी था। सफाई से फारिग होकर मैंने कुछ आराम किया और फिर गुस्ल किया। मैं भूल गया था कि यहाँ दिन में कैसा गर्म पानी आता है। इससे मैंने गुस्ल किया और तकरीबन बॉयल हो गया। एसी में आकर जरा सुकून मिला था और साथ ही भूख लगने लगी थी, मगर खालिद ने बाहर जाने से मना किया था, इसलिए मैंने सब्र करने का फैसला किया और लेट गया। थकन और हादसे के नतीजे में लगने वाली चोटों की वजह से जिस्म दुख रहा था। गर्म पानी से इतना हुआ कि चोटों की सिकाई हो गई। पेन किलर की वजह से जिस्म और जहन किसी कदर सुन था, इसलिए लेटा तो कुछ देर बाद नींद आ गई। जागा तो शाम हो चुकी थी। 7 बज रहे थे और जिस्म में दर्द बढ़ चुका था, मगर इससे ज्यादा तवज्जो तलब पेट में होने वाली ईंठन थी, जो यकीनन भूख की वजह से हो रही थी। मैंने खालिद को कॉल की, मुझे भूख लग रही है, क्या मुझे बाहर जाने की इजाज़त है? हाँ चले जाओ, लेकिन ज़रा छुप छुपा कर देखो, अलमारी में पी कैप के साथ सनग्लासेस भी होंगे, तो पहन लेना और ज़रा दूर मत जाना, और कोशिश करना जल्द अज जल्द वापस आ जाओ। कोई पेशरफ्त हुई? मैंने पूछा। आकर बताऊंगा, उसने कहा। अब मुझे कॉल मत करना। मैंने अलमारी खोलकर देखी तो इसमें एक पुरानी पी कैप और 2 अदद सन ग्लासेस थे। ये भी ओल्ड फैशन थे, मगर मेरा काम निकल रहा था। मैंने पी कैप और सन ग्लासेस लगाकर खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि बहुत गौर से देखने पर को मुझे डॉक्टर सैफुद्दीन की हैसियत से शनाख्त कर सकता था। फ्लैट की चाबियों का एक सेट दरवाजे के पास की होल्डर में लगा हुआ था। मैं बाहर आया और गली सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया। यकीनन इस इमारत का कोई वाली वारस नहीं था, वरना इसे म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से भारी जुर्माने भरने पड़ते। यहाँ आते हुए मैंने देखा था कि कुछ पीछे एक छोटा सा बाजार था। मुझे उम्मीद थी कि वहां से मुझे खाने की कोई माकूल चीजें मिल जाएंगी। ये काफी गरीबाना सा इलाका था और यहाँ इमारतें और बाजार भी इसी हिसाब के थे। एक फास्ट फूड की दुकान से मुझे जिंगर बर्गर मिल गया। अगरचे ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ भी यही अच्छी चीज थी। इसके साथ मैंने शेक का पैक गिलास लिया, एक जनरल स्टोर से चाय बनाने का सामान लिया और आखिर में एक बेकरी से नाश्ता का बंदोबस्त करके आ रहा था कि मेडिकल स्टोर नजर आ गया। मैंने अपने लिए दवा और जख्म पर चिपकाने वाली पट्टी ले ली। यहाँ मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आराम से दवा मिल गई थी। शहर में मुझे इतनी आसानी से दवा नहीं मिल सकती थी। मैं आधे घंटे में वापस आ गया था। रात होने के बावजूद मौसम बहुत गर्म था। एसी की खुनकी में आकर सुकून मिला। जिंगर खासा बड़ा था। मेरी तसल्ली हो गई थी। फिर चाय बनाई। शाम में चाय की आदत है, वो नहीं मिली तो कसलमंदी सी हो रही थी। चाय के साथ दवा ले ली। पेन किलर की जरूरत नहीं थी। एक एंटीबायोटिक ले ली। जो पट्टी डॉक्टर ने लगाई थी वो उतारने से खराब हो गई थी। मैंने ताज़ा पट्टी लगा ली। सर का जख्म ठीक हालत में था। करने को कुछ था नहीं, इसलिए फेसबुक इस्तेमाल करता रहा। आदिल को अपनी खैरियत की इत्तला थी, मगर उसे यह नहीं बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ था और मौत मुझसे 1 इंच के फासले से गुजर गई थी। वो परेशान हो जाता और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। खालिद रात 11 बजे आया। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई तो मैं चौकन्ना हो गया और खामोशी से दरवाजे के पास जाकर सुनगुल ले रहा था कि खालिद की आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोल दिया तो जख्मी हाथ अपने सामने लटकाए हुए अंदर आया। मेरी तरह उसकी हालत भी खासी बेहतर नजर आ रही थी। उसने हैरत से फ्लैट को देखा। ये तुमने किया है? हाँ, मैं इसी तरह नहीं रह सकता था और करने को कुछ था ही नहीं, इसलिए सफाई कर दी। तुमने बिल्कुल साफ कर दिया। उसने एक बड़ा सा शापर मेज पर रखा और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने चाय का पूछा तो उसने इनकार कर दिया। जैसी चाय तुम लोग पीते हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम खालिस कहवा पीते हो तो वो भी बना सकता हूँ। नहीं छोड़ो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मैं उसके सामने आ बैठा। तुम कह रहे थे कि आकर बताओगे। एक बात सामने आई है, उसने सर हिलाया। तुम आमिर उल साद नामी शख्स से वाकिफ हो? मैंने जहन पर जोर दिया और नफी में सर हिला दिया।
नहीं, मुझे नहीं याद कि इस नाम का कोई शख्स मेरा वाकिफ कर रहा हो। अगर मरीज रहा है तो मैं यकीन से नहीं कह सकता। क्या इसकी कोई तस्वीर है? खालिद ने अपने ज़ाती आईफोन पर इस मकामी शख्स की तस्वीर सामने की, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी था। मैंने नफी में सर हिलाते हुए पूछा, इस शख्स का इस मामले से क्या ताल्लुक है? हमलावर जिस गाड़ी में था वो आमिर की है। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून है। अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स इसकी मुख्तलिफ कंपनियां चला रही हैं। वो क्या कहता है? उसका कहना है कि उसे नहीं मालूम कि यह गाड़ी कैसे उस शख्स के पास पहुंची और उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है ये गाड़ी रिजर्व में थी और इसके दफ्तर की पार्किंग में मौजूद रहती थी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसकी गाड़ी इसके स्टाफ के इल्म में आए बगैर वहां से निकाली जाए? मैंने एतराज किया। इसका कहना है कि इसके पास 50 से ज्यादा गाड़ियां हैं और ये सब की सब उसके स्टाफ की तहमील में रहती हैं। स्टाफ का क्या कहना है? इसके इंचार्ज का कहना है कि यह गाड़ी मुरम्मत होकर आई थी और इसे पार्किंग में पिछले हिस्से में खड़ा किया गया था। आमिर के लिए यह रिटायर कर दी गई थी और अब इसे आम इस्तेमाल में लाया जाता था। इसे भी नहीं मालूम कि वहां से यह कैसे निकाली गई। मेरा ख्याल है वो सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। खालिद ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर हम फर्दे जुर्म आयद करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा इंचार्ज गिरफ्त में आएगा और वो भी गफलत का जवाब पेश करके छूट जाएगा। पार्किंग के रिकॉर्ड से भी मदद नहीं मिली, सिर्फ इतनी कि यह गाड़ी वाकई से सिर्फ 2 घंटे पहले पार्किंग से निकली थी। रिकॉर्ड में यह नहीं लिखा कि गाड़ी कौन चला रहा था और इस वक्त इसमें और कौन था। मैंने ठंडी सांस ली। यानी पुलिस फिर डेड एंड पर खड़ी है। ऐसा नहीं है वो खड़ा हो गया, हमारे हाथ एक सिरा आ गया है। मेरा ख्याल था कि यहाँ कानून मजबूत है, मगर यहाँ भी बड़े लोग बच सकते हैं। अगर उनके खिलाफ सबूत आ जाए तो फिर बचना मुमकिन नहीं होता। मगर फिलहाल हमारे पास सबूत नहीं है। तुम इस केस पर काम जारी रखोगे? क्यों नहीं? अब तक 2 अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं और 2 जख्मी हुए हैं। यह मामूली बात नहीं है। मेरी क्लियरेंस का क्या हुआ? उम्मीद है 1-2 दिन में हो जाएगी, खालिद ने कहा। अब मैं भी चाहता हूं तुम यहां से चले जाओ ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत की तरफ से बेफिक्र होकर केस पर काम कर सकूं। मुझे एक बार अस्पताल जाना होगा, मैंने कहा। इसका बंदोबस्त हो जाएगा, उसने रवाना होते हुए कहा। बस 1-2 दिन और सब्र कर लो। इसके जाने के बाद मैंने शापिर का मुआयना किया तो इसमें कई 4 चीजें थी। इन्हें सिर्फ गर्म करना पड़ता। कोल्ड ड्रिंक थी और इसके साथ अंडे, दूध और डबल रोटी थी। मैंने महसूस किया कि खालिद यहाँ के आम पुलिस अफसरान से मुख्तलिफ अफसर था। वो मेरे लिए ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहा था, हालांकि उसे ज़रूरत नहीं थी। तभी इस हालत में वो इतनी दूर मुझे खाने पीने का सामान देने आया था। खिलाफे मामूल में दिन में सो लिया था, इसलिए रात देर तक जागता रहा और फेसबुक पर मगन रहा। खुमैरा से बात हुई थी। मैंने उसे बताया कि अब मैं एक और जगह हूँ और यहाँ इंटरनेट दस्तयाब नहीं था, इसलिए फेसबुक पर गुजारा करना पड़ रहा है। उसने बताया कि उसने शाम को आदिल को कॉल की थी, मगर उसने रिसीव नहीं की। वो फिक्रमंद थी, कहीं वो कल किसी बात पर नाराज तो नहीं हो क्या? हो सकता है, तुम जानती हो वो जरा हिसास है, खास तौर से अब्बा जी और माँ जी के बाद जरा सी बात भी उससे लग जाती है। मैं उसे बिल्कुल माजिद की तरह समझती हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने उसे तसल्ली दी। आदमी अपनों ही से तो नाराज होता है। तुम जानती हो उसे ज्यादा से ज्यादा कल तक वो मान जाएगा। अगर नाराज हुआ तो मैं सुबह फिर उसे कॉल करूंगी। खुमैरा ने जवाब दिया। मैं भी कॉल करूंगा। उस रात मैं सोने के लिए लेटा तो न जाने क्यों मुझे आदिल का ख्याल आ रहा था। ये आदिल था जिसने मुझे इस हिसार से निकाला था, वरना अब्बा जी के वफात के बाद मैं गोया एक दायरे में कैद हो गया था। इस वक्त तक मुझे क्रिकेट से खासी दिलचस्पी नहीं थी। यह आदिल ही था जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट देखने का शौक हुआ और अब पाकिस्तान का कोई मैच आ रहा हो और मैं फारिग हूं तो लाजमी मैच देखता हूं। यूं रफ्ता रफ्ता मैं मामूल की तरफ लौट आया। अब्बा जी के इलाज के लिए मुझे कुछ कर्ज लेना पड़ा था, वो वापस किया। जमीन का असर नोट ठेका तय किया। इसे अच्छी खासी रकम हाथ आई थी। आदिल की स्कूल फीस ही अच्छी खासी थी। फिर 9 में आने के बाद दूसरी सरगर्मियों पर भी अच्छा खासा खर्च होता था। वो जितना मांगता मैं उसे दे देता था। मेरी ख्वाहिश थी कि उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। अब्बा जी कहते थे कि जवान लड़के को इतनी रकम ना दिया करो, कहीं उल्टे सीधे चक्करों में न पड़ जाए। मैं उनसे कहता, मुझे आदिल पर एतमाद है, इसके कदम कभी गलत राहों पर नहीं उठेंगे। लेकिन ये मैं अब्बा जी की तसल्ली के लिए कहता था। दर हकीकत मैंने आदिल पर पूरी नजर की हुई थी। उसके कितने दोस्त थे और किस पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, मुझे सब मालूम था। और वो सब बहुत अच्छी फैमिलीज के सुलझे हुए लड़के थे जिनकी सरगर्मियां सेहतमंदाना थी। फिर आदिल के मामूलात तयशुदा थे। वो सुबह स्कूल जाता और दोपहर में सीधा घर आ जाता। इसके बाद वो 4 बजे निकलता था और 7 बजे तक दोस्तों के साथ रहता था। 8 से 9 बजे तक कोचिंग जाता था और उसके बाद वो घर में होता। छुट्टी वाले दिन भी वो सिर्फ मैच या किसी दोस्त के साथ बाहर जाता था। इसलिए मुझे इत्मीनान था कि अगर उसके मामूलात में कोई तब्दीली आती
तो मुझे फौरन पता चल जाता। उसकी तालीमी कारकर्दगी पर भी मुकम्मल मैं नज़र रखता था। हर टर्म में वो नुमाया पोजीशन ले रहा था। इसके टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आती थी। उसकी 9 क्लास की तैयारी भी अच्छी चल रही थी। इसकी जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अच्छा खासा कद निकाल लिया था। खेल की वजह से उसका जिस्म भी मजबूत हो रहा था। 1 साल में डॉक्टर रफीक ने मेरी कारकर्दगी से खुश होकर मुझे इमरजेंसी का इंचार्ज बना दिया था। अब मैं शिफ्ट सुपरवाइजर था, इस लिहाज से तनख्वाह में भी इजाफा हुआ था। इस अस्पताल में काम करके मेरे तजर्बे में भी इजाफा हुआ था और मैंने सोच लिया था कि मैं एलर्जी में स्पेशलाइजेशन करूंगा। मगर इसके लिए मुझे काफ़ी रकम दरकार थी, क्योंकि ये सिर्फ बैरून मुल्क से हो सकती थी और मैं पीछे भी इतना छोड़ कर जाना चाहता था कि माजी और आदिल को कोई मसला ना हो। इसलिए ये इरादा मैंने 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया। तब तक मैं मजीद तजर्बा हासिल कर लेता और कुछ रकम भी जमा कर लेता। मजीद 1 साल बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए कोशिश शुरू कर दी। मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ इसकी सबसे अच्छी तालीम दी जाती थी और ये सबसे कम खर्च भी थी। 1 साल में मैं वापस आ जाता। ज़मीन के ठेके से आने वाली रकम मैं जमा कर रहा था। ये आदिल के अखराजात के लिए काम आती। तनख्वाह से तो सिर्फ खर्च चल रहा था। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई, मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। पासपोर्ट बनवा लिया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया और मुझे आसानी से वीज़ा मिल गया। मैंने ठेके की सारी रकम इस बार पेशगी ली थी और रहमत चाचा पर वाजे कर दिया था कि अगर वो नहीं माने तो मैं ठेका किसी और को दे दूंगा। हमारी ज़मीन लेकर वो बहुत फ़ायदे में थे। जितना हमें देते थे इससे कहीं ज़्यादा कमा लेते थे। मजबूरन उन्हें सारी रकम पेशगी देना पड़ी। मिल मिला के कोई 2 लाख की रकम थी और ये आदिल के साल भर के अखराजात के लिए काफ़ी थी। रकम मैंने अपने अकाउंट में डाली थी और आदिल को अपने चेक बुक पर सारे चेक साइन करके दे दिए। बैंक मैनेजर को भी हिदायत कर दी थी कि वो चेक कैश होने में कोई रुकावट ना आने थी। उसने यकीन दिलाया था कि वो इसका मुकम्मल ख्याल रखेगा। मैंने फयाज साहब से भी बात कर ली थी कि वो मेरी वापसी से पहले पोर्शन खाली कराने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर वो हमसे खुश थे। डॉक्टर साहब, आप खाली की बात कर रहे हो, मैंने आपको यहाँ से जाने नहीं देना है। आप बेफिक्र होकर जाओ, बहन और आदिल का ख्याल मैं रखूंगा। आप मुझसे रब्ता करना अगर किसी किस्म का मसला हो। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जानने वाले हैं, इधर का मसला नहीं है, बस यहाँ के लिए फिक्रमंद हूँ। आदिल बच्चा है। मैंने कहा ना, अब बेफिक्र होकर जाओ। मेरा दाखिला पर्थ यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये 1 साल का कोर्स था जो मुझे बैक वक्त स्टडी और अमली तजर्बे की सूरत में करना था। 2 हफ्ते मुझे वहाँ के मायार से हम आहंग होने में लगे। मैं यहाँ से भी स्टडी करता हुआ गया, इसलिए मुझे खास मुश्किल नहीं हुई। इस वक्त मुझे खुशगवार हैरत हुई जब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी निस्फ फीस ख़त्म कर दी गई और बाकी निस्फ फीस अस्पताल में हफ्ते में 12 घंटे ड्यूटी के एवज ख़त्म कर दी जाती। रहाइश और दूसरी सहूलियात पहले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से थी, इसलिए मेरा बोझ खासी हद तक कम हो गया। मेरा वक्त सुबह से दोपहर तक यूनिवर्सिटी में गुजरता और फिर मैं अस्पताल चला जाता। रात में कुछ वक्त इंटरनेट के जरिए आदिल से बात होती और फिर मैं अगले दिन की तैयारी करके सो जाता। छुट्टी वाले दिन अपने सारे हफ्ते के काम निपटाता था। ये शेड्यूल इतना सख्त था कि इस दौरान में मुझे सिर्फ 3-4 बार तफरीह के लिए कहीं जाने का मौका मिला था।